Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied everything about the Neolithical age. In that we studied the origin of Neolithic age, characteristics of Neolithic age. The characteristics were the agriculture, tools, weapons, housing, pottery, architecture, technology, and last point was the community life. Right now, we'll be studying the Neolithic culture. With the end of the Neolithic age, several cultures started using metal, mostly copper and low grade bronze. See, जैसे जैसे न्योलिथिकल एज एंड हुआ, बहुत सारे अलग अलग कल्चर यूज़ होना चालू हो गए. मेटल्स आए, मोस्टली कॉपर एंड लो ग्रेड ब्रॉन्ज. ब्रॉन्ज भी आया था, बट ब्रॉन्ज क्या था, हल्की क्वालिटी का था. The culture based on the use of copper and stone was termed as a Chalothical, meaning stone copper phase. See, Chalothical age का क्यों बोला है? ये जो कल्चर आया नया, जो कॉपर का अच्छे से यूज़ करना है आपको, जिसमें कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, स्टोन का यूज़ हो रहा है, इसीलिए इसको बोला है चारकोलथिकल. मीन्स इसको इसलिए टर्म्ड एज ए चारकोलथिकल, जिसका मीनिंग है स्टोन कॉपर फ्रेज. लाइक यहाँ पे स्टोन और कॉपर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. इन इंडिया इट स्पैंड अराउंड 2000 BC टू 700 BC. इंडिया में कब से कब तक था? इन इंडिया इट स्पैंड अराउंड 2000 BC टू 700 BC. दिस कल्चर वॉज मेनली सीन इन प्री हरप्पन फेज, बट एट मैनी प्लेसेस इट एक्सटेंडेड टू पोस्ट हरप्पन फेज टू. सी, दिस कल्चर we can see mainly in the pre Harappan phase, और उसके बाद post Harappan phase में भी थोड़ा सा था. The people were mostly rural and lived near hills and rivers. See, people यहाँ पे क्या थे? They were rural and they lived near the hills and river. The Charcolithic culture corresponds to the framing communities, mainly Kayata, Ahar और Banas, Malwa and Jorvi. सी, द चारकोलिथिक कल्चर क्या है? इट करस्पॉन्ड टू अ फार्मिंग कम्युनिटी. किस पे डिपेंड है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फार्मिंग कम्युनिटी, नेमली आयता, आहार और बनास, मालवा एंड जोरवी. द नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ चारकोलिथिक एज. द टर्म चारकोलिथिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स. चारको प्लस लिथिक was derived from the Greek word chalkos plus lithos, which means copper and stone or copper age. See, the term चारकोलिथिक क्या है? ये combination of two words है, that is चालको plus लिथिक, और ये दोनों words क्या है? ग्रीक वर्ड है. ग्रीक वर्ड यानी खालकोस प्लस लिथोस, जिसका मतलब है कॉपर एंड स्टोन, or else you can call it as a copper age. It is also known as the Ethnolothic or Entholethine. From Latin, annus of copper is an archaeological period that is usually considered to be the part of the broad Neolithic. See, it is also known as the Ethnolothic. और ये जो archaeological period है, it is considered to be a part of broader Neolithic. Although it was originally defined as a transition between the Neolithic and the Bronze Age. See, it was a transition between the Neolithic and the Bronze Age. B point is the development of Charcolithic settlement cultural process. The Indian subcontinent has all the favorable ecological conditions necessary to give birth to the early framing communities which with growing technology complexities evolved into the first cities. See, the Indian subcontinent क्या है? हैज़ ऑल द फेवरेबल इकोलॉजिकल कंडीशन. सी, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पास क्या थे? सारे फेवरेबल कंडीशन थे, जिसकी वजह से क्या फार्मिंग कम्युनिटी आसानी से ग्रोथ हो सकती थी, और जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी भी नई नई आ रही थी. द रीजन विटनेस्ड टू इंडिपेंडेंट स्ट्रीम्स ऑफ ओरिजिन ऑफ विलेजेस. Economic with the associated technology which evolves and develops through the early phase of village society into the development and mature complex villages. See, the region witnessed two independent stream of origin of villages. यहाँ पे क्या हो गया?
नए नए विलेजेस आए जिनके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगे और डेवलप थ्रू द अर्ली फेज ऑफ विलेज सोसाइटी इनटू डेवलप एंड मैच्योर कॉम्प्लेक्स विलेज एंड द अर्ली cities. Hence, it is important to trace the ongoing culture process in the region. On the basis of material culture and technologies in use, the Chalcolithic of South Asia has been subdivided into early mature and late phase. See, on the basis of material culture and the technologies in use, the Chalcolithic of South Asia इन्होंने क्या किया है? It has been subdivided into early mature and late phase. The earlier beginning are seen in the northwestern regions of Afghanistan and Baluchistan, which the latter by independent of the former is seen in the southeast Rajasthan on the Banas river. See, the earlier beginning जो पहले चालू हुआ था ये आपको कहाँ देखने को मिलता है? You can see this in the नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान और उसके बाद का जो भी आपको देखने मिलता है वी कैन सी इन द साउथ ईस्ट राजस्थान ऑन द बनास रिवर. द रेस्ट ऑफ इंडिया द डेवलपमेंट ऑफ विलेज बेस्ड कल्चर स्टार्टेड इन द लेटर पार्ट ऑफ द मेसोलिथिक फेज एंड continued in the Neolithic and Chalcolithic between 35,000 to between 3,500 and 1000 BC. See, in the rest of the India, the development of village-based culture started in the latter part of the Mesolithic phase. और ये कब तक कंटिन्यू हुआ? It continued into Neolithic and Chalcolithic between 3,500 and 1000 BC. In the Ganga Valley, though the site of Koldihawa has produced an early date, there is a lack of other corroborative C14 dates. See, हम क्या बोल रहे हैं? इन द गंगा वैली, अभी गंगा वैली के उधर जो साइट वगैरह मिली जिसका नाम है कोल्दिहावा वॉज प्रोड्यूस्ड एन अर्ली डेट, उधर क्या है? बहुत ज़्यादा लैक ऑफ अदर कोलैबोरेटिव C14 डेट्स हैं. हेंस दिस डेट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जनरलाइजेशन. ये डेट्स अपन जनरलाइजेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते. द डिक्लाइंड फेज ऑफ द चारकोलिथिक हैज़ बीन properly studied at the site of Inamgaon in the Bhima basin of the lower Deccan region. से ये चारकोलिथिक साइट्स वगैरह सारे अपने को कहाँ मिले, इसके बारे में अपने को ज़्यादा अच्छे से जानकारी कहाँ मिली? एट द साइट ऑफ इनामगांव इन द भीमा बेसिन ऑफ द लोअर डेक्कन रीजन. ऑफ द अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज that came into existence in different parts of South Asia, the Chalcolithic phase in central India, the Deccan and the South India have been systematically studied thanks to the pioneering work by Deccan College under the leadership of H.D. Sankalia. See, अब क्या हो गया यहाँ पे? ऑफ द अर्ली फार्मिंग कम्युनिटी, अभी फार्मिंग कम्युनिटी जो एग्जिस्टेंस है, जो उस वक्त एग्जिस्टेंस आई थी, इन जो अपने को देखने को मिल रही थी इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ साउथ एशिया. ये चार्कोलिथिक फेज इन सेंट्रल इंडिया कहाँ पे मिला? अपने को डेक्कन में मिला एंड साउथ इंडिया में मिला. और ये अपन स्टडी अच्छे से कब कर पाए? जब डेक्कन कॉलेज ने उसका इनिशिएटिव लिया एंड इट वाज अंडर द लीडरशिप ऑफ H.D. Sankalia. Unfortunately, the eastern and the northeastern part has not been subjected to systematically archaeological research. See, unfortunately क्या है? The eastern and the northeastern they has not been subjected to systematic archaeological research and therefore very little known about this region. इसलिए बहुत ज़्यादा अपने को पता नहीं है इस रीजन के बारे में. Chalcolithic crafts and technologies. The introduction of various technologies is considered to be one of the important contributions of the Chalcolithical of the subcontinent. See, the introduction क्या है यहाँ पे? The introduction of various technologies is considered to be the one of the most important. जो अपने को नई नई टेक्नोलॉजीज मिली है उस वक्त जो नए नए इनोवेशन नई नई टेक्नोलॉजी क्या है, दिस ऑल प्लेड एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द Chalcolithic of the subcontinent. The material culture of the Chalcolithic society of the subcontinent was varied and rich with developed socio-economic and technological features. See, the material culture of the
चारकोलिथिकल सोसाइटी ऑफ द सब कॉन्टिनेंट क्या है, वो अलग था और बहुत ज़्यादा रिच था एंड अच्छे से डेवलपमेंट हुआ इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकली फीचर. द प्रेजेंस ऑफ द डेवलप्ड of specialized is an important indicator of the diverse technological milieu craft specialization. See, the presence of the developed craft specialization is an ये एक जो उस वक्त जो क्राफ्ट डेवलप हुआ था, एक क्राफ्ट में जो स्पेशलाइजेशन हुआ था, ये क्या है, ये अपने को इंडिकेटर देता है, ये अपने को एक साइन देता है कि उस वक्त टेक्नोलॉजी कितने अच्छे से प्रेजेंट थी, कितने अच्छे से यूज़ कर रहे थे. Craft specialization as a particular phenomena may be present in almost any culture. However, it matured in the Chalcolithical period world over. See, craft में specialization होना, ये सारे क्या हैं, ये सारे important phenomena है जो बाद में हर culture ने अपनाया और Chalcolithic period में क्या हुआ, craft all over world फैल गया, like all over world craft was started using. There is ample evidence in the Chalcolithic levels for prior technology like pottery, bricks, terracotta, lime, paste and pigments, copper, gold, metallurgy, etc. See, अभी क्या है, आपको बहुत सारे एविडेंस देखने को मिलते हैं इन द Chalcolithic लेवल फॉर प्रायर टेक्नोलॉजी, लाइक अलग अलग टेक्नोलॉजी, लाइक इट कैन बी इन द फील्ड ऑफ पॉटरी, ब्रिक्स, टेराकोटा, लाइम, पेस्ट, ये सब में आप नई नई इन्वेंशंस आए, ये सारे नए नए टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ी, ये सब आपको चारकोलिथिक एज में देखने को मिलता है. एंड नॉन प्रो टेक्नोलॉजीज लाइक एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, हाइड्रोलिक, लैपिडेरी, फ्लिंट नैपिंग एंड प्रोडक्ट मेड ऑफ बोन, एंटलर, वुड, शेल, स्टोन, आइवरी एक्सेट्रा. सी, टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूवमेंट किया, जो किया ही इधर यहाँ पे. Apart from that technological improvement, there was another apart टेक्नोलॉजी बिना यूज़ किए भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई थी, लाइक इट कैन बी इन द फील्ड, इट वॉज इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, हाइड्रोलिक, देन नैपिंग, देन ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के, किसके ऑर्नामेंट्स वगैरह बनाने के, या फिर ये बोन, शेल्स, जो एनिमल के शेल्स, स्टोन, आइवरी, इनसे नए नए प्रोडक्ट बनाने का, ये सारा काम कब हुआ, इट स्टार्टेड इन द Chalcolithic एज. Many of these technological aspects that the Chalcolithic people introduced in the 5th millennium BC have contributed to the present with minor or no change. See, क्या है, ये बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है जो Chalcolithic people ने इंट्रोड्यूस किए इन द 5th millennium BC, दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द माइनर और नो चेंज. उन्होंने कंट्रीब्यूट किया थोड़े छोटे मोटे चेंजेस, और कहीं कहीं चीज़ों में कोई चेंजेस भी नहीं आए. अ नंबर ऑफ फाइंड्स दैट शुड बी एक्सपेक्टेड इफ क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन वॉज प्रेजेंट इंक्लूड, सी, अ नंबर ऑफ फाइंड्स दैट कैन बी एक्सपेक्टेड. अभी बहुत सारी चीज़ें अभी अपने को मिली, लाइक क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन तो हुआ ही. अपार्ट फ्रॉम दैट पॉटरी मैन्युफैक्चरिंग, बर्न ब्रिक, टेराकोटा, लाइम, पेस्ट and synthesis, copper metallurgy, gold, architectures, lithics and stone working, bead production, agriculture and food processing, shell industry, ivory, transport, stone, textiles, etc. See, अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे अभी अपने को ऐसा है कि क्राफ्ट में तो स्पेशलाइजेशन हुआ ही हुआ है, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट और बहुत सी चीज़ों में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया, बहुत सी चीज़ों में नए नए इम्प्रूवमेंट लाए. दे केम अप विथ न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि सी, दे आर टेलिंग अबाउट द पॉटरी मैन्युफैक्चरिंग, लाइक पॉटरी, पॉट वगैरह बनाते थे, क्योंकि उस वक्त लोग पॉट में ही तो खाना खाते थे, पॉट के मतलब वो मिट्टी के ही बर्तन वगैरह रहते थे, तो पॉटरी की ज़रूरत क्यों थी, सो दैट वी कैन स्टोर द ग्रेन्स एंड ऑल, राइट. देन बर्न्ड ब्रिक्स घर वगैरह बनाने के लिए. टेराकोटा क्या है, ये एक टाइप का मटेरियल है जो मूर्ति वगैरह बनाने के लिए अपन यूज़ करते हैं. लाइम, पेस्ट, सिंथेसिस, कॉपर मेटलर्जी, गोल्ड, आर्किटेक्चर, लिथिक्स एंड स्टोन वर्किंग, लाइक स्टोन पे बहुत ज़्यादा काम करते थे वो लोग, लाइक कार्विंग वगैरह स्टोन पे बहुत करते थे. बीड प्रोडक्शन यानी बिड्स वगैरह आते हैं ना, जो मनी वगैरह अपन बोलते हैं ना, उसका प्रोडक्शन. एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग, शेल इंडस्ट्री, आइवरी,
ट्रांसपोर्ट, स्टोन, टेक्सटाइल, इन सब फील्ड में धीरे धीरे डेवलप हो गया था. सी, टुडे वी हैव फिनिश्ड आवर फर्स्ट चैप्टर. In next lecture, we'll start with the second chapter. Read the topic well. If you have any doubt, mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.